this is Risk is Noise. And with I am Tosif. With me are Ali or Mariam. और आज we are keeping it a little light and हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी इमिग्रेशन की स्टोरी और फिर कुछ स्टोरीज हैं जो हमने लोगों से सुनी हैं about different kind of situations they found themselves in when they tried to immigrate to Canada in our story. So we will reflect some light on that. फिर हम शेयर करेंगे कि what's the Canada का landscape किस तरह का है and how is it looking like for immigrants in future. और फिर कुछ myths discuss करेंगे जो हमने कुछ perceptions अगर build किए थे यहाँ आने से पहले. How were they in accordance with the reality? So before sharing my story, I'll start with you folks. So Mariam, can you share how it came about and what is your immigration story? Sure. So, hello everyone. So my story starts with one fine day and me thinking that I should do a PhD, and that was an interesting decision. And when I wanted to do a PhD, basically I started applying for a PhD program all over the world, but mostly Europe and North America. And at that point, there were a few things I had in mind because I've had a background in computer vision and deep learning. So I wanted to do something related to it. So I was applying in universities in London, I was applying for universities in Ireland, and then here in Canada. And I heard back from all three places, not a brag, just saying. And I think the reason I ended up coming to Canada wasn't immigration at that point. For me, it was I wanted to do a PhD. That was my whole plan. I was teaching back home for past 6 months, something I was enjoying, and I thought that I should do something in this line of field. And the reason I ended up selecting Canada was a conversation I had with a friend. She taught her her name is Javeri, and she has done her PhD from Europe. Very talented girl. We spoke about it, and she told me that when you're doing your PhD, your university ranking doesn't matter as such. That what matters is the supervisor and how well he's connected in the industry, how well he's connected academically, and the work that you will be doing. So out of these three of them, my supervisor was the most consistent one with his interactions. We were talking throughout. The work he was doing was very interesting. I could see Alice smiling. No. And the work he was doing was very interesting. So basically, there's a little bit of a background though. So the Bing maps were originated from our lab. So we have a history of working in indoor-outdoor navigations. We have done a lot of work in remote sensing. And at that point, to be honest, something was connecting to me. There was a lot of things we were hearing in the remote sensing community. So I ended up in Canada and I did my PhD. And then I think third year of my PhD, I was recruited by the company that I was doing my research with. Also, another aspect for me was the research was very practical. So that was very attractive to me. I didn't want to do something theoretical. I didn't want to do something just to write the papers. I wanted to see something making a contribution commercially as well. So I worked for that company for 2.5 years. I finished my PhD, and when I finished my PhD, I
at that point, I've already done my IELTS exam, which is here we have one alternative of it, SALPEB, and then I put myself in the express entry category because I did have an experience before coming here. And the 6 months experience is in the STEM category in Canada got me my PR very quickly after my PhD. So that was my immigration story. Right. So in terms of time, that is what, like 5, 6 years, right? Yeah, I think it would have been if I finished my PhD before, it would have been before, but it took me Who five does years that? to finish my. Oh yeah, that's true. Well, it took me 5 years to finish my PhD, and Hmm. by the end of my PhD, I was drawn for the express entry. Hmm. Neat. Okay, so I'll extend the same conversation to Ali. And Ali, how did you? Because I do remember you were in the professional life, and then you made uh like a transition to academic life. So yeah, I'll let you share your story. Okay, yeah, thank you. Hello, everyone. So yeah, I think my story is a little bit different than Mariam. Although, just a disclaimer, the reason I was smiling so I was just remembering few of those moments we had together. Me and Mariam were part of the same lab, same supervisor. Anyhow, coming back to my story, me and Tasif, we did our bachelor's together from Pakistan. I think I was never into academia after that. Like I think I was pretty much sure that I just want to stay in industry. That's what I did. I worked for 2 years in Pakistan. Then I moved to Abu Dhabi. I worked there for 5.5 years. Uh, Everything was great until जब कोविड स्टार्ट हुआ. अब कोविड जब स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे मुझे याद है कि मार्च 2020 में 2020 के स्टार्ट में कोविड रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो गई थी. मार्च में मुझे पाकिस्तान जाना पड़ा बिकॉज मेरी दो सिस्टर्स की शादियां थी. और जब मैं पाकिस्तान था तो लॉकडाउन मेजर्स एक्सट्रीम हो गई, सारे बॉर्डर्स बंद हो गए. उस टाइम पे मुझे सो आई स्पेंट अराउंड लाइक आई थिंक मुझे कुछ 1.5 एक साल मैंने पाकिस्तान में ही काम किया रिमोट अपनी कंपनी के साथ. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो चीज पहले से बैक ऑफ माइंड तो था ही. एंड आई रिमेम्बर लाइक I had some opportunities, one like from the same lab. तो उस टाइम पे like I was just मैंने बैलेंस की चीजें कि like I'm on a peak of my career right now. If I go to अगर मैं अभी इंडस्ट्री में एकेडेमिया में जाता हूँ तो I will lose some time. Anyhow, जब कोविड हुआ तो आपको पता है like countries like UAE and they weren't welcoming people back. So मुझे वहाँ पे थोड़ा सा रियलाइजेशन हुई कि इवन दो आप वहाँ पे लाइक इफ यू हैव अ गुड जॉब यू आप फिर भी वहाँ पे कोई बहुत कंफर्टेबल लाइक यू दे कैन किक यू व्हेनेवर यू वांट. सो दैट प्रॉम्प्टेड लाइफ डिसीजन फॉर मी. तो मैंने सोचना शुरू किया कि नाउ आई एम एट दैट पॉइंट कि जहाँ पे मैं शायद पाकिस्तान में वापस आके काम नहीं कर सकता. नथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तानी कंपनीज बट क्योंकि मैंने ऑलरेडी पाकिस्तानी इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, जिस तरह का वहाँ पे काम हो रहा था, तो मेरे पर्सनल गोल थोड़े डिफरेंट थे. तो वहाँ पे मुझे रियलाइजेशन हुई कि अब ये टाइम आ गया कि मैं यूएई से बियॉन्ड देखना शुरू करूँ. कनाडा वाज अ नेचुरल लाइक टॉप ऑफ द लिस्ट ऑप्शन बिकॉज आप सब दोस्त यहाँ पे थे. देन मैंने फिर वही दोबारा जो पुरानी लीड थी उसको उसको दोबारा प्रोवोक किया. देन लाइक इन समरी मेरा मास्टर्स में एडमिशन हो गया. सो I did quite good savings during COVID because UAE की सैलरी ले रहे थे पाकिस्तान में for 1.5 years. So economically, it wasn't as difficult because just for everyone जिसको शायद ये बात ना पता हो, यहाँ पे मोस्टली नॉर्थ अमेरिका में इवन यूरोप में जो मास्टर्स डिग्रीज हैं, जो ग्रेजुएट डिग्रीज हैं, बेसिकली मास्टर्स पीएचडीज जो रिसर्च बेस्ड हैं वो फुली फंडेड होती हैं. और आपको उसके साथ कुछ रिसर्च फंड भी मिलते हैं. यू गेट अपॉर्चुनिटी एज अ टीचर असिस्टेंट.
सो आप टीचर्स के साथ लैब्स या मार्किंग्स वगैरह करते हो आपको, सो बेसिकली इन समरी आपको एक डिसेंट अमाउंट मिल जाती है अपना सर्वाइवल करने के लिए, एंड यू कैन डू सम सेविंग्स एज वेल a little bit. So that was the time. So I finished my master. During masters मेरी शादी हो गई. So शादी भी मेरी यहीं पे हुई, and then because I still had 1 year to go, so I decided to not wait further, and then I entered. Unlike Mariam, I chose the spousal route. So by that route, I got my PR. So I have been PR now for almost 2 years. So yeah, so the next step for me would be applying citizenship. Anyhow, so I finished my masters, and luckily I finished it on time. So that was good. A big achievement from my lab, keeping the histories and everything in Yeah. mind. Yeah. So then उसके बाद मैंने I wanna say luckily because the job market यहाँ पे भी थोड़ी challenging है जैसे overall. So I found a good job. So in summary, Alhamdulillah, everything is being really good. Right. Awesome. Yeah, so I will close this topic by sharing my story. मैं like as a software developer काम कर रहा था लाहौर में for like good 2.5 years. उसके बाद मैं एक ट्रांजिशन मोड में था जहाँ पे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन स्विच कर रहा था, जैसे ट्रेडिशनली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में होता है कि आफ्टर सम टाइम आपकी जो लाइक यू हिट द सीलिंग और उसके बाद आपको वहाँ पे लाइक ग्रोथ के एवेन्यूज खत्म हो जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली द वे पाकिस्तान की Yeah. सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज. तो you you have to jump between organizations to get a salary bump और उसके साथ जो भी चीज़ें आती हैं. So मैं इंटरव्यूज के प्रोसेस में था. I was actually hired by another company. उस टाइम पे one of our common friends, I think we should just give him a shoot out at this point. yeah, Dr. Dr. Usman Muhammad happened to Usman. be he ran more like an incubation center in his basement जहाँ पे हम सब आके रहे हैं. So he And started immigration officer as well. yeah. Yeah, So true. yeah, that was 2015. और उसने मुझे पुश करना शुरू किया था कि I know this professor so and so, they are running a startup, they are looking for a person. You can learn and go through the interview, most likely you're going to clear it. So And I just want to say, so we are still talking about the same professor. Same professor. basically yeah happened to be my CTO. So I looked up the JD और वो काफ़ी डिफरेंट मुझे लग रही थी कि मैं उस टाइम पे गेम डेवलपमेंट के अंदर था. द आस्क वाज टू ऑप्टिमाइज 3D rendering part of it, that which was OpenGL, totally different. I was least bit interested at that time, but I still thought about going ahead with the interview at least. तो मैंने इंटरव्यू दे के लिए प्रेपरेशन शुरू कर दी. उसके अंदर आई हैड टू स्टडी लाइक हार्डकोर OpenGL. उसमें वो एक बुक आती है जिसको रेड बाइबल ऑफ GL टाइप कुछ बोलते हैं, कोई 100 ऑड पेजेस है उसके अंदर. मैंने उसको पढ़ा और इंटरव्यू की तैयारी की. द फॉलोइंग डे इंटरव्यू वेंट रियली वेल. It went decently and I did not get a nod. So I thought that maybe that's it, और इसका लाइक कोई फॉलो अप नहीं होने वाला. तो आई कंटिन्यूड जहाँ पे मेरी हायरिंग हुई थी. और फिर again I got a call from Usman Saab and he was like they want to hire you.
देन उसके बाद कोई महीने 1.5 महीने का प्रोसेस था जिसके अंदर, बिकॉज स्टार्ट में तो मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा मतलब हाउ, और उनकी तरफ से कोई इंडिकेशन भी नहीं थी लाइक and how permanent is this gonna be, because unka initial ask was to optimize their platform, and I was thinking once I do it and then I'm done, what else am I required for? um, but in any event, for like a month or I was talking with my family कि इस तरह से ये opportunity है, किसी stage पे I will have to move. Start में थोड़ा सा उनके लिए था क्योंकि my father has worked abroad for like 20 odd years, so they were looking at it from that lens. Okay, it's gonna start and it's gonna, like, he's never gonna come back. But eventually, them having discussion within themselves, they also realized the situation in Pakistan was getting such. So, long story short, I decided to join that company. Um, I put up a visit visa request very quickly. It was turned down very quickly. We will get into the details of those avenues. Afterwards, मैं 2 साल तक उनके साथ remotely काम करता रहा, and in the meanwhile, I went through IELTS and all those supplementary processes जो चाहिए होते हैं, and I put up an application that took 2 years. 2016 अक्टूबर के अंदर मैंने एप्लीकेशन सबमिट की थी और 2 साल उसको मटीरियलाइज होने को लगे. In 2018, around August, I got my passport request, or November 2018 is when I came here. यहाँ पे आने के बाद I've never gone back to academia. My story is different in that way. I have been in industry for like what, 6 years now, 6+ years here. If you exclude the remote time that I was working from there. During that, mostly we have been working in a small team apart from the COVID time, जिसके अंदर I had to move back. And that is when I got married, and then I had to do like the whole process all over again for my wife. That was again like a spousal invite route, which Ali discussed. That again took like, given के COVID वाली situation थी उस time पे, so it took some time. It took like good 2 years again until we came back together in July of 2021. Yeah, so that was my story. So a bit of the motivation for today's discussion comes from, I had a story, and I will let you guys share such stories too if you have any, because we know the kind of desperation जो इस वक्त है, and the willingness of people to move to other countries. इस प्रोसेस में जो हो रहा है वो ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रही है. I got a call from one of my old friends जिसको कोई immigration agent था, was offering like 17-18 lakhs for a visit visa that basically costs nothing, like 30,000 it costs at max. And you can put up all of your application yourself, and the likelihood of that application succeeding is pretty much same as जो इमिग्रेशन एजेंट एप्लीकेशन सबमिट करेगा या आप करोगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. सेम पेपर वर्क होगा, उनके एक्सेप्ट होने का चांस सेम होगा. सो
I was in discussion with him, and I'm not very well educated on the topic of immigration, but जितनी मुझे लूप होल्स पता थे जिसको ये इमिग्रेशन एजेंट्स और इस तरह लोग बैठ के एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आई शेयर्ड इट विद हिम टू गिव हिम like a reality of the situation. Like I did not want him end up losing like 16-17 lakhs and then not getting the visa application, or even if he did, what would it look like? So I would go back to Ali. I would first request you to share any such instances जहाँ पे हमने कुछ attempted frauds frankly खुद भी पकड़े हैं, क्योंकि हम लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमने we share quite कुछ often. डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं और हमने बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर दिया कि इस डॉक्यूमेंट में क्या चीज ऑफ है जिसकी वजह से ये फेक लग रहा है. सो आई वुड encourage you to share like any of those stories if you have, if we can help people in any way. And also if you could share your what are the possible routes that exist today for people अगर वो कनाडा में आना चाहे. Okay, yeah, sure. Actually, very good question. So incidents तो बहुत ज़्यादा हैं. Maybe it's because के एक तो चीज़ पाकिस्तान के हालात हैं, डेस्परेशन है, और ये डेस्परेशन सिर्फ लाइक किसी सिर्फ एक तबके के अंदर लिमिटेड नहीं रही. ठीक है. अब मैं जस्ट कल एक वो यूट्यूबर है न्यूजीलैंड बेस्ड कार्ड से वो विजिट कर रहा है पाकिस्तान नॉर्दर्न एरियाज. सो इवन आई थिंक इट्स अ 2 months old वीडियो. सो वो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में लाइक ही विजिट लाइक कॉमन प्लेसेस, स्ट्रीट फूड्स एंड स्टफ लाइक दैट. सो एट द एंड ऑफ द वीडियो वो बात कर रहा था कि इन्फ्लेशन और बाकी चीज़ों ने इतना लोगों को सफोकेट कर दिया कि इवन लाइक नाउ वेटर्स they are coming to me, they are asking me कि please tell us how to get out. तो मतलब आई थिंक अब पहले हम देखते थे कि जो लोग थोड़ा पढ़ जाते थे या जिनके पास अच्छी जॉब्स है, जिनको थोड़ा प्रॉस्पेक्ट बाहर नजर आता था, वो ऑप्शंस को देखते थे. बाकी लोग पाकिस्तान में अपना गुजारा बसर कर लेते थे. तो अब ये जो सारी सिचुएशन बन रही है इसके अंदर फिर अपॉर्चुनिटी आ गई है जो एक्टर्स हैं, जो फ्रॉडलेंट्स हैं, कि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि कुछ डेस्परेशन को कैश किया जाए. तो पहले मैं इसको स्टार्ट करता हूँ कुछ केसेस के साथ. एंड मे बी इन माई केस इट्स वेरी कॉमन बिकॉज मैं ओरिजिनली एक गांव से बिलोंग करता हूँ जिसके अंदर हमारे गांव में एक काफ़ी हद तक और बाकी मतलब जो एक्सटेंडेड रिलेटिव्स हैं उस साइड पे भी काफ़ी एक ट्रेंड है इमिग्रेशन का. लोगों के पास वसाइल भी हैं कि दे कैन स्पेंड दैट मनी एंड गो आउट. सो अब उस उनके फिर जानने वाले या कोई इस तरह से, तो मतलब whenever they get to know कि oh like Ali is in Canada, so let's just ask him. So पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रॉड के साथ. आई विल जस्ट शेयर वन स्टोरी के आई थिंक एक साल एक पहले मुझे मेरे अब्बू का फोन आया. उन्होंने मुझे एक हमारा रिलेटिव है, दूर का रिलेटिव है, बट उसका मुझे बताया कि उन्होंने पूरी फैमिली की इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है एंड सून दे विल बी इन कनाडा. टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक maybe I have an interest in that, so because मुझे उनके बैकग्राउंड का पता है, so in my mind I kind of knew that this is gonna be another fraud. After some times 1 or 2 months after मुझे दोबारा अब्बू की कॉल आई. उन्होंने कहा like I gave your number to him, he will call you. तो वो थोड़े परेशान हैं, उनको गाइड करना. so मुझे उनकी कॉल आई, उन्होंने मुझे बताया. अब जो स्टोरी सुनाऊंगा इसके अंदर ये गाइड भी है कि कैसे ये काम करते हैं, कैसे इनका तरीका वारदात क्या है, अगर हम वो एक टर्म यूज करें उसके लिए. तो उन्होंने मुझे स्टोरी बताई कि एक मुझे एजेंट मिला पाकिस्तान में. मैंने उसको बताया कि यार मेरे बच्चे भी छोटे हैं, बड़े हो रहे हैं, आई वांट कि ये बाहर चले जाएं, अच्छी पढ़ाई कर लें, तो मैं सिर्फ इनको भेजना चाहता हूँ. अब वो देख लेते हैं कि आप दे आर वेरी गुड एट असेसिंग कि आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज क्या हैं. तो उन्होंने कहा आप ये क्यों नहीं चाहते कि मैं आपकी पूरी फैमिली को इमिग्रेट करवा दूं. तो उन्होंने कहा ये तो बेस्ट केस सिनेरियो होगा. उन्होंने कहा ठीक है, फिर ऐसे करते हैं, आपका सारा काम लीगल होगा. क्योंकि पाकिस्तान में पहले यूरोप जाने का और काफ़ी हद तक अभी भी है जिसको हम डंकी कहते हैं कि आप विदाउट एनी पेपर, विदाउट एनी वीज़ा, विदाउट एनी, सो आप ईरान से तुर्की से मतलब ऑन फुट आप ये करते थे एक्सप्लोर. तो अब एजेंट्स ने
उस रूट में काफ़ी ज़्यादा डेथ्स भी होती हैं, काफ़ी डिफिकल्टीज भी हैं, वेरी रिस्की। तो अब एजेंट्स के पास एक तरीका आ गया, उन्होंने कहा आपका लीगल रूट होगा, आपने एम्बेसी में जाना है, आपने वहाँ पे जाकर फिंगरप्रिंट्स देने हैं, लाइक एवरीथिंग विल बी लीगल एंड यू विल पे मनी स्टेप बाय स्टेप। अब एक सिंपल सी बात जो सबको समझनी चाहिए वो ये है कि जिस बंदे की भी एप्लीकेशन सबमिट होगी उसको फिंगरप्रिंट की रिक्वेस्ट आएगी। इट Firstly, डजंट मीन कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई या रिजेक्ट हो गई है। इट्स जस्ट अ प्रोसेस। दे नीड योर फिंगरप्रिंट्स ताकि वो वेरीफाई कर सके कि आप पहले सिस्टम में हैं, अगर हैं तो आपने पहले कोई फ्रॉड किया हुआ है या इफ यू आर रिक्वायर्ड डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू आपका बैकग्राउंड चेक उन्होंने करना था। सो इट्स जस्ट पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन पैकेज। अब वो इसको एजेंट्स इसको कैसे यूज करते हैं, वो कहते हैं कि आप हमें शुरू में दें लेट्स से 10 लाख, हम आपके एप्लीकेशन पैकेज रेडी करते हैं, फिर आपको एम्बेसी से कॉल आएगी और आपको वो ऑफिशियल ईमेल होगी, सारा कुछ होगा, आपने वो लेके पाकिस्तान में बीएफएस जारी कर रहा है तो उसको वो ऐसे कंसिडर करते हैं कि वो जब उन्होंने आपको बुला लिया ना, समझे कि तो अब जिस बंदे को इमिग्रेशन का नहीं पता वो वहां पे जाएगा, वो देखेगा सिस्टम, ही विल सी कि देयर आर डिफरेंट एम्बेसीज अंडर देयर, सो एवरीथिंग सीम्स लीगल। अब वो उस माइलस्टोन के ऊपर वो उसने क्या किया, उसने कहा कि जब आपको फिंगरप्रिंट्स की रिक्वेस्ट आ जाएगी तो आपने 50 लाख देना बाकी। सो उनको रिक्वेस्ट आई, दे वेंट देयर और उन्होंने देखा कि यार एवरीथिंग सीम्स लाइक ऑथेंटिक, जो कि है, बट उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता कि इसकी कोई लाइक कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई मतलब सिग्निफिकेंस नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई। उन्होंने वो किया। अब वो पोर्टल एक्सेस भी अपने पास रखते हैं। सो पोर्टल ये होता है कि जहाँ पे आप बेसिकली अपनी एप्लीकेशन पुट करते हैं। जैसे तौसीफ ने कहा कि फॉर अ विजिट वीजा यू इन मोस्ट केसेस यू डोंट नीड एन एजेंट टू फाइल, आपका वीजा फाइल करने के लिए, लेकिन वो आपसे रिप्रेजेंटेटिव का साइन करवा लेते हैं ताकि आप देख ना सके प्रोग्रेस क्या है। इन मोस्ट केसेस आप जो भी एप्लीकेशन पुट करते हैं उसका रिजल्ट एक टाइमलाइन दी होती है। पाकिस्तान के केसेस में थोड़ी बहुत मतलब एक्सटेंडेड टाइमलाइन है, बट यू ऐसा नहीं है कि आपको कोई 4 साल बाद भी कोई। तो उस बंदे ने क्या किया, बिकॉज ही वांटेड टू यूज देयर मनी, वो उसने पोर्टल एक्सेस अपने पास रखी, उनके फिंगरप्रिंट्स कराए, पैसे लिए, फिर जब थोड़ा और मजीद टाइम गुजरा तो उनको अब कनाडा के केस में, एंड दिस कैन वेरी फर्दर कंट्रीज, कनाडा के केस में आप मेडिकल अपफ्रंट भी करवा सकते हैं। सो मेडिकल, मोस्टली मेडिकल रिक्वेस्ट अगर आती है तो दैट इंडिकेट्स कि आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट बाकी सारा कुछ पूरा हो गया। सो दैट्स हाउ टिपिकली इज is the last बट step. एज अ लास्ट स्टेप, बट देयर इज अनदर वे। अब क्योंकि वो इसको यूज करते हैं, वो कहते हैं कि मेडिकल आने का मतलब है कि अब तो आपकी एप्लीकेशन प्रूव हो गई है। इन मोस्ट केसेस दैट्स ट्रू, बट देयर इज अनदर एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन ये है कि आप मेडिकल अपफ्रंट भी बुक करवा सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एप्लीकेशन से पहले ही अपफ्रंट की बुकिंग करवा लेते हैं। जब फिंगरप्रिंट्स हो जाते हैं उसके बाद वो कहते हैं देखिए आपकी तो मेडिकल रिक्वेस्ट आ गई है, 3-4 महीने बाद जब भी की डेट ली होती है, अब उस पे वो मजीद पैसे निकलवा लेते हैं। सो दैट मेडिकल इज अपफ्रंट मेडिकल। अपफ्रंट मेडिकल का मतलब यही है कि आप कहते हो कि मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ, मुझे मेडिकल रिक्वेस्ट आए या ना आए, और कल को मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, बिकॉज आपको मेडिकल रिक्वेस्ट आए फिर आप उसको अपॉइंटमेंट कराते हो। पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में अपॉइंटमेंट्स भी थोड़ी डिलेड होती हैं। सो in some cases and it's not a recommended route as well, तो वो आप कहते हो कि आई टेक द रिस्क, क्योंकि मेडिकल के पैसे आपको रिफंडेबल नहीं है, बट आप कहते हो कि आई टेक द रिस्क, मैं अपफ्रंट मेडिकल कराऊंगा जस्ट टू सेव टाइम। वो आपसे वो अपफ्रंट मेडिकल करवाते हैं और फिर वो आपसे दोबारा पैसे निकालते हैं। सो दैट्स व्हाट ही डिड विद देम। सो इन टोटल आई थिंक ही टुक मोर देन 3 crore फ्रॉम देम फॉर द होल फैमिली। सो ही यूज्ड दैट मनी फॉर 3 good years। उसके बाद उस मतलब obviously he at the end he said yeah visa reject हो गया आपका। So here and this is still a good case where he Yeah, gave it's the a money back, closure. but he used that money for 3 years। So अब इसकी बहुत सी वैरायटीज हैं, इस फ्रॉड की बहुत सी वैरायटीज हैं। ये तो एक रूट हो गया जो कि एक पर्सनल स्टोरी है। अब मैं कुछ और चीजें भी बताता हूँ। अब मुझे मेरे कुछ और फ्रेंड्स ने राब्ते करने शुरू किए कि यार स्पेशली आई थिंक साल एक पहले जब ये विजिट वीजा वगैरह काफी पाकिस्तान में, अब होता क्या है कि विद सोशल मीडिया एंड इट्स वेरी सैड एक्चुअली, वो करते क्या है कि फ्रॉड करना बड़ा इजी हो गया और इसको प्रोपेगेट करना बहुत इजी हो गया। वो करते क्या है कि 1-2 विजिट वीजा किसी के अप्रूव हुए हैं, लाइक इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट कि आपके सर्कल में कोई, स्पेशली इफ यू आर इन दिस फील्ड, अब किसी को पासपोर्ट दिखाना, उसको फ्लैश करना, वीजा लग गया है, फिर टिकटॉक पे इंस्टाग्राम पे उसकी वीडियोस डालना,
और कहना कि डन डील है, लाख में, 2 लाख में, 4 लाख में, या अप्लाई करने का हम हर बंदे की इसमें बहुत ज़्यादा रेसिपीज हैं फ्रॉड की, या आपको हम इनवाइट देंगे। अब ये इनवाइट का भी एक एलिमेंट है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ और बेसिकली एजुकेट करना चाहता हूँ। विजिट वीजा के लिए इनवाइट है। विजिट वीजा मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। एक विजिट वीजा इस तरह से भी हो सकता है कि एवरीबॉडी हैज देयर ओन सर्कमस्टेंसेस। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ सैर के लिए जा रहा हूँ तो मुझे कोई इनवाइट की जरूरत नहीं है, राइट? तो मैं कह सकता हूँ, मैं अपनी एप्लीकेशन पुट करूँ, इनवाइट कोई मैंडेटरी चीज नहीं है, बट इट्स अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो बट अगर मैं लेट्स से कोई शादी अटेंड करने जा रहा हूँ, यूएस में है, कनाडा में, कहीं और पे, तो इट मेक सेंस कि आपके पास एक इनवाइट होनी चाहिए। आप बोलो कि मैं इनके पास शादी के लिए जा रहा हूँ, मुझे उन्होंने बुलाया, एंड देन द अदर पर्सन हु इज इनवाइटिंग यू, वो आपको इनवाइट दें, वो सारा अपना इंडिकेट करें कि मेरा ये स्टेटस है, ये साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। सो ये तो एक लीगल तरीका है, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। मैंने अपने फादर को बुलाया, आई सेंट हिम एन इनवाइट, वो उन्होंने यूज की, उन्होंने कहा मेरा बेटा है, वो मुझे बुलाना चाहता है, मैं उनके पास 2 महीने 4 महीने जितनी देर भी रहूंगा। सो बट अब इस इनवाइट के तरीके को अब्यूज किया जाता है फ्रॉड करने के लिए पाकिस्तान में। वो कैसे? वो कहते हैं कि अगर आपको कोई जानने वाला नहीं है, आपको कोई इनवाइट नहीं मिल सकती, हम आपकी इनवाइट अरेंज करेंगे। उस इनवाइट की कोई वैल्यू नहीं है। एंड दिस इज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंस कि अगर आपका ब्लड रिलेटिव नहीं है और वो आपको इनवाइट देता है, इट्स वेरी रेयर कि यू गोना गेट अ वीजा। तो आप वो जो सिर्फ उस इनवाइट को लेने के लिए कर रहे हो, और वो इनवाइट फ्रॉड है। अब जो कैनेडियन इमिग्रेशन ने भी ये सारी चीजें नोट करनी शुरू की। अब वो लोगों को जब वो फर्स्ट टाइम इमिग्रेशन करवाने आते हैं बॉर्डर पे, व्हेन दे ट्रैवल, तो वो उनको पूछते हैं, एंड दे फाउंड सम केसेस लाइक दीस आर रिपोर्टेड केसेस कि एजेंट्स ने, लेट्स से मैंने अपने फादर का वीजा अप्लाई करना था। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो खुद से ये चीजें नहीं करना चाहते, डोंट वांट टू गेट इनटू कॉम्प्लेक्सिटी, सो एक एजेंट हायर कर देते हैं। एजेंट्स वो इन्फॉर्मेशन अपने पास रख लेते हैं। सो आई वाज रीडिंग दैट स्टोरी कि एक इंडियन लड़की थी यहाँ पे, उसने अपने पेरेंट्स को बुलाना था, उसके लिए उसने जो अपने डॉक्यूमेंट्स दिए टू क्रिएट एन इनवाइट एजेंट को, एजेंट ने वो रीयूज किए और केसेस में। वीजा भी 1-2 केसेस में लोगों का लगा, वो वहां पे आए, उन्होंने पकड़ा, उन्होंने जब कॉल की, उसने कहा नो, मैं तो इनको जानती नहीं हूँ। सो उसको उन्होंने डिपोर्ट किया, उसको उन्होंने बैन किया। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई एजेंट ये कहता है कि हम आपको इनवाइट देंगे और उस इनवाइट के साथ आपकी वीजा गारंटेड हो जाएगा, आजकल के सिनेरियो में सिचुएशन ये है कि इस चीज के भी चांसेस बहुत कम हैं कि मैं अपने ब्लड रिलेटिव्स को इनवाइट दूं और उनका भी वीजा लगे, इफ दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन विद माय पेरेंट्स, और अगर उनके, क्योंकि कनाडा इसको किस नजर से देखता है या दूसरा भी कोई कंट्री किस नजर से देखता है। मुझे अक्सर दोस्तों की कॉल आती है, वो पूछते हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि तुम विजिट पे यहाँ पे क्यों आना चाहते हो? अगर उनका आंसर ये होता है कि हम विजिट पे आएंगे, हम यहाँ पे काम करेंगे या ओवरस्टे करेंगे, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि ये चीज कनाडा को भी पता है, ये चीज अमेरिका को भी पता है। अगर बहुत से लोगों के वीजा लगते हैं जो यहाँ पे आते हैं, सिर्फ विजिट करने आते हैं, abundance of information or with experience they have, like all the immigrations departments everywhere around the world, उनको पता होता है कि आप जो हम होम टाइल्स शो करते हैं, हम सारी चीजें करते हैं, उनको पता होता है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट इवन टू सम एक्सटेंट। मुझे लगता है कि मैं भी ये चीज चेक कर सकता हूँ कि कोई बंदा किस एज, आप बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं, आपकी एज, आपके बैक होम में फाइनेंशियल कंडीशंस क्या हैं आपका। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है एंड ही कैन शो कि ही इज डूइंग लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर्स पर, तो इट मेक सेंस कि वो बंदा विजिट करने आ रहा है। बट अगर आप इस टाइम पे अपने स्टार्ट ऑफ कैरियर में हो और आप कह रहे हो कि मैं 2-3 महीने के लिए विजिट करने जा रहा हूँ, दैट डजंट मेक मच सेंस टू देम। सो आई थिंक मैं इसको कंक्लूड इस चीज पे करूंगा कि बजाय इसके कि आप ये रूट्स करें और अपने आप को टिंट करवाएं, अपनी एप्लीकेशन यू गेट इनटू सिस्टम, अगर वो आपके डॉक्यूमेंट्स फ्रॉडुलेंट पकड़े जाते हैं तो इट्स बिकम परमानेंट। तो आप इन चीजों पे पैसा वेस्ट ना करें, बट देन एट द एंड यू आस्क मी कि व्हाट आर द अदर लीगल वेज। तो अगर तो आप वाकई ही पाकिस्तान से बाहर आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, डोंट गो थ्रू दिस रूट कि आप विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं एंड देन दैट्स, अगर आपका लग भी जाए वीजा, आप यहाँ पे आ भी जाएं, लाइफ इज नॉट गोना बी इजी फॉर यू। आपको फिर असाइलम क्लेम करना पड़ेगा, उन चीजों को भी अब मजीद टफ किया जा रहा है, तो दैट्स नॉट गोना बी इजी। लीगल वेज में ये है कि अगर आपके पास, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी कॉमन बिट, हम तीनों की स्टोरीज में जो कनेक्शंस हैं इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है।
सो जब आप Yeah. यूनिवर्सिटी में हैं, बिल्ड कनेक्शन। आपको नहीं पता कि किस टाइम पे कौन सा अच्छा कनेक्शन आपके काम आए। डोंट शाय लोगों से हेल्प लेने में, मतलब अगर आप लिंक्डइन पे हैं, बाकी जगहों पे हैं, प्रोफेसर अगर आपको नजर आ रहा है कि आपका दैट रेलिवेंट इज वर्क अगर कर रहा है। आप दैट इज अगर आप स्टडी वीजा पे ऑलरेडी यहाँ पे, राइट? नो, इवन आई एम सेइंग इवन इफ यू आर इन पाकिस्तान ओके, ओके। एंड Yeah. यू हैव दिस बिगर पिक्चर कि एक दिन मैंने बाहर जाना है, हम्म। so I would say start manifesting it, start working for it, start building connections, लोगों को अप्रोच करें। I know some stories, हमारी लैब में प्रोफेसर्स को लिंक्डइन पे अप्रोच किया गया, प्रोफेसर्स ने। So with this new immigration toughness जिसके अंदर स्टूडेंट वीजास कम हो रहे हैं, but in my opinion ये जो मास्टर स्ट्रीम्स हैं, पीएचडी स्ट्रीम्स हैं, they are not gonna completely stop, right? Like Oh ये yeah, रिसर्च, definitely not. या रिसर्च लैब्स तो चलनी है। इट्स द रियलिटी इज कि अगर आपके पास कोई अच्छा स्किल नहीं है, अगर आपके पास कोई अच्छी डिग्री नहीं है, एटलीस्ट बैचलर्स आपने पाकिस्तान से नहीं किया हुआ, थिंग्स आर बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। तो मे बी जिस तरह अभी तो मतलब एक छोटी सी बात है, पाकिस्तान से पहले यूएई जाना वाज लाइक अ पीस ऑफ केक। लोग विजिट वीजा वहां पे जाते थे, जॉब्स ढूंढते थे, डजेंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको जॉब मतलब कुछ आप कंपैरेटिवली जिस तरह की भी रिलेटिव जॉब मिल जाती थी, आप फिर वहां पे कुछ सेविंग करते थे, टाइम स्पेंड करते थे, फिर लोग वहां से आगे स्टेप बाय स्टेप करते थे। आई थिंक दैट इज गोना चेंज नाउ। इवन यूएई हैज रियलाइज्ड कि दे हैव वे मोर पीपल देन दे कैन अफोर्ड। उन्होंने पाकिस्तान से किया, नाउ दे आर डूइंग द सेम विद इंडिया। वहां के भी वीजाज काफी हद तक रिजेक्ट हो रहे हैं। तो द थिंग इज ये चीजें डिफिकल्ट होती जा रही हैं इमिग्रेशन की, बट देन दैट्स व्हाई यू नीड टू शाइन, यू नीड टू शाइन रियली वेल। हाउ यू गोना शाइन? इन्वेस्ट इन योर बैचलर्स डिग्री। जो चीज मुझे भी रियलाइज हुई हमने नहीं की, इफ यू रियली, क्योंकि मेरा तो गोल नहीं था, बट इफ यू रियली वांट गेट इनटू अ ग्रेजुएट प्रोग्राम, see के how can you shine. I think few suggestions I have on from top of my head is कि हम mostly bachelors में papers वगैरह publish नहीं करते, research में हमारा projects इस तरह के नहीं होते कि who can transform into a master's degree, so have a bigger goal। लोगों को देखें जो लोग आपके कुछ कलीग्स होंगे बहुत ज्यादा, एंड आई एम श्योर हर पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में एग्जांपल्स हैं, लोग वहां से निकले हैं, मास्टर्स की हैं, पीएचडीज की हैं, बड़ी बड़ी अच्छी कंपनीज में हैं। टॉक विद देम, अप्रोच देम थ्रू लिंक्डइन, थ्रू अदर सोर्सेज, सीक देयर गाइडेंस। और लाइक आई हैड बीन वेरी लकी कि जब लोगों से कुछ पूछा है वो गाइड करते हैं। सो आई थिंक आई विल समराइज दिस विद द फोकस के लीगल वेज को देखें, दे विल मेक योर लाइफ इजी। Like in Tasif's case, in Mariam's case, in my case, I I can swear on that कि अगर मैं शायद illegal way से आया होता तो मैं यहाँ पे survive ना कर पाता, क्योंकि life is very difficult even when you come as a legal migrant, but वो आपको peace of mind, वो opportunity, सारा कुछ, you need that to survive here. Money is not gonna be your only focus, so that's it. Right. Awesome. So I will extend the conversation, bring Mariam in. So Mariam, can you specifically speak about some of the routes that you are aware of, especially for students that are available, जिसके थ्रू, या कुछ programs हैं जो available हैं students के लिए, अगर कोई पाकिस्तान से study visa पे आना चाहता है, या let's say अगर वो direct PR पे भी आना चाहता है, और अगर कोई PR पे यहाँ पे आता है तो उनके लिए क्या avenues available हैं, और उनकी क्या probabilities हैं कि वो translate हो जाएंगी PR के अंदर या citizenship के अंदर at some time? So I do want to mention here कि I think I agree with Ali and Tausif both here is कि आपके connections बहुत matter करते हैं, आपकी ability to network बहुत matter करती है। यहाँ पर लोग they basically trust you by connections, so that really helps. जो आपके पास राउट्स हैं, सो आई कम फ्रॉम बलूचिस्तान, और हमारे यहाँ इतना ट्रेंड नहीं है लोगों का नॉर्थ अमेरिका वाली साइड पे जाने का। दे गो यूरोप और दे गो टू मिडल ईस्ट। और मेरी फैमिली में तो एज सच आई थिंक मेरे एक फूफा हैं जिन्होंने काफी टाइम मिडल ईस्ट में गुजारा है, बट ओवरऑल इस तरह का कोई ट्रेंड था नहीं। एंड
one thing that I want to talk about here is कि आपके skill बहुत matter करते हैं, but also voicing what you want to do. Like met, I think 6 months before I started applying for a PhD to one of my friend who was a mutual friend with Usman, and I told her कि I'm thinking of doing a PhD. And then Usman reached out to her and that if you're interested, and she said I'm not, but a friend of mine is. And then we got connected and we did the interview and everything. So yeah, talk about with people, tell them what you're thinking. हमारे यहाँ थोड़ा सा जो है ना ये concept है कि जी किसी को कुछ बताना नहीं है और पता नहीं कौन से sneak attacks करने हैं, so please don't do Yeah. that. तो जो है speak about it, what you want to do in life. तो पहली तो ये एक चीज हो गई. दूसरा ये कि when we are talking about students, so as Ali have mentioned already, आपके पास masters और PhD programs में mostly Canada के अंदर they are fully funded programs. Research based programs available हैं. There are few exceptions for masters program जो कि जिनमें आपको funding नहीं मिलेगी. But if you're looking for a research-based program, there's a highly likely chance कि आपको funding मिल जाएगी और वो guaranteed funding है in all big universities. वो guaranteed funding is enough to cover your housing, utilities, आपके सारे expenses cover हो जाते हैं, and yes, you are able to save. I was able to save. I lived a decent life, so it wasn't that hard. The same आपकी guaranteed funding अगर 2 साल या 4 साल की है तो it also again depends on your professor upon with your universities. वो आपको extend कर सकते हैं अगर आपका program extend हो रहा है, आपके पास legit reasons हैं, आपकी पुरानी research make sense कर रही है, उन्हें 2 साल आपने अगर मास्टर्स में या 4 साल PhD में लगा दिए and they can see कि आप बहुत अच्छा output generate कर रहे हैं, तो वो आपकी 1 साल extend कर भी देते हैं, 1 साल 1.5 साल extend कर देते हैं. तो पहली तो ये चीज हो गई. अब उन प्रोग्राम्स के लिए आपने अप्लाई किस तरह करना है. सो एज अली मेंशन्ड, यू हैव टू शाइन. आपकी if you are coming from a good university, that always helps, but let's see कि आपकी यूनिवर्सिटी बहुत highly ranked नहीं है. You should have a good CGPA, that does matter. आपकी eligibility below 3 आपको यूनिवर्सिटीज एज सच कंसीडर नहीं करती. ठीक है, 2.5 पर एलिजिबिलिटी स्टार्ट होती है, बट 3 एक्चुअली गिव्स यू दैट पुश कि अच्छा दिस पर्सन विल बी एबल टू डू अ मास्टर्स एंड अ PhD, दे आर एकेडमिकली इंक्लाइंड. अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं एंड इफ यू हैव अ गुड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, सम लैब्स विल काउंट दैट बिकॉज वो देख रही हैं कि आप की प्रोग्रामिंग है, आपको आप जो जिस फील्ड में थे उसमें आपके पास कुछ एक्सपीरियंस मौजूद है. क्योंकि हमारे यहाँ इतने अच्छे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते नहीं है, हम पब्लिश नहीं करते, सो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हेल्प यू ऑन दैट साइड. तो वो एक चीज हो गई. अगर आप लाइक जो लोग मुझे पता है जिन्होंने बैचलर्स के बाद या तो डायरेक्टली PhDs स्टार्ट की हैं या मास्टर्स के स्कॉलरशिप्स में की हैं, उनमें एक हाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जिनकी पब्लिकेशंस थी बैचलर लेवल पर. You don't have to go for very high impact journals, you don't have to go for high conferences, but लिखें. Even जब आप अपना थीसिस लिख रहे हैं तो उस पे थोड़ी सी मेहनत करें. हम सारे अब तो I understand there are a lot of editing tools, there's a lot of copy and paste, you don't want to put a lot of effort in things, but do it. It's your future, you're getting one chance for it. Don't let somebody else do your work. पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गोस्ट राइटिंग का रिवाज है, लोग अपने थीसिस दूसरों से लिखवा लेते हैं, अपने पेपर्स दूसरों से लिखवा लेते हैं. ना करें ऐसे काम, थोड़ा सा एफर्ट पुट इन करें. चैट जीपीटी से अपना पेपर ना लिखवाएं. यहाँ जो बंदा बैठा है वो भी पागल नहीं है और दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ. सो अगर मैं पढ़ के मेरा कोई लाइफ में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट अगर 2 पैराग्राफ पढ़ के मैं बता सकती हूँ कि ये चैट जीपीटी ने लिखा है, तो वो प्रोफेसर जो रोज पब्लिकेशंस लिख रहा है, 12 साल से पब्लिकेशंस लिख रहा है, वो भी बता सकता है. तो एक चीज तो ये हो गई कि ट्राई टू पुट इन एफर्ट इन योर डॉक्यूमेंटेशन. यस, आपने प्रोफेसर्स को लिंक्डइन पे रीच आउट करें, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करें, और कनेक्शन पहले से बिल्ड करें. अपनी लिंक्डइन पे प्रोफाइल्स स्ट्रॉन्ग करें. रीच आउट टू डिफरेंट प्रोफेसर्स यू आर इंटरेस्टेड इन. एक जो चीज दैट स्टिल बॉदर्स मी वाज अ स्टोरी दैट अ friend and a colleague did was he was looking for a scholarship for a PhD, and
ये साहब बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं, उन्होंने बैचलर्स मास्टर्स किया हुआ है, आप पढ़ा रहे हैं और आप पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई करें. देयर इज अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी इन मलेशिया, and what he did was he sent an email to every professor there. And पहले तो ये बहुत गलत हरकत है, आप सबको ना भेजें. दूसरा ये, he didn't even write separate emails for it. He just copied all Same. of them. Like he put this, he didn't even like they were all in the the two field of email. And one of the professor replied and saying, "You're disrespecting all of us in one go." So जो है अगले के बारे में पढ़ें कुछ और फिर उसके Yeah. बाद उसको कांटेक्ट करें कि जी मेरे एक्सपीरियंसेस आपके काम से किस तरह अलाइन हो रहे हैं. अगर आप अगले बंदे को बता ही नहीं रहे हो कि उसे क्या फायदा हो रहा है आपको हायर करने का, तो वो क्यों आपको You're hire selling करेगा? yourself, so you need to sell it Exactly. well. तो दूसरा ये कि अपनी सीवीज पे थोड़ी मेहनत करें. दे शुडंट बी टू फ्लैशी बट दे शुडंट बी टू बोरिंग. एक पेज की सीवी बनाएं, किसी के पास टाइम नहीं है आपकी 6 पेजेस की सीवी पढ़ने का. यूज द वर्ड्स दैट मैटर, मेक श्योर स्पेलिंग्स करेक्ट हैं, ग्रामर करेक्ट है. आई नो इट्स अनोइंग बट दीज आर द थिंग्स. आप एक चीज पढ़ें, आप अपना एक एड बना रहे हैं, अगर उस एड में ही गलतियां हैं तो वो अगला बंदा आपको बिल्कुल भी वो नहीं देगा. So by the way, and for like even academia, because हमें पता है कि इंडस्ट्री में ऐसा है, इवन academia के लिए भी if you set up your resume, तो you are saying कि वो detailed नहीं होनी चाहिए, it should be a one pager. yes, आप लिंक्डइन प्रोफाइल अटैच करें, उसमें पब्लिकेशंस की ऑप्शन होती है, गूगल स्कॉलर का लिंक डाल दें वहां. अगर आपकी पब्लिकेशंस हुई नहीं है, आपके And I want to say, सुपरवाइजर्स या I just want to say, like, I think so. One pager, and this is just my opinion on this. I think one pager is ideal, but don't shy if you have more to put. So, for example, just in my case, I think I have a very long CV considering, like, I worked in 3 companies. I had internship here. I had like a master program where I did a project. So when I was applying for, जब मैं जॉब्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहा था, तो मुझे शुरू में मैंने वन पेजर बनाई, तो मुझे लगा, and then now you know like ATS tools and everything, those ATS tools like they are automated tools. उन्होंने मैच करने हैं कीवर्ड्स आपके सीवी के साथ. So I think yes, historical guidance is one pager, but now अब थोड़ी वो चीजें कुछ चेंज हो रही हैं. Even some universities are using ATS just to shortlist, because just imagine, सिर्फ पाकिस्तान के हालात नहीं खराब हुए, Iran is very focused for masters PhD scholarships. So वहाँ पे universities train करती हैं इस चीज के लिए कि आपने भाई scholarship लेनी है. So just imagine the number of CVs coming in. So just wanted to say that bit, that ideally yes, but I have this exception where my one pager wasn't working very well, so I have a 2-pager CV which I don't think I can shrink into one page. So ATS, sorry to cut you. ATS for people is कि कोई बंदा नहीं बैठा हुआ, it's an automated system जो shortlist करेगा, जिसको बाद में बंदा उसके ऊपर दूसरा राउंड करेगा, right? Yeah, basically Yes. आपने एक AI टूल है जो कीवर्ड्स को मैच करता है JD के साथ. तो आपने किसी कंपनी में अप्लाई किया, सीवी सेंड की है और वहाँ पे 1000 सीवीज आई हैं. आपने देखा होगा अभी लिंक्डइन पे एक जॉब पोस्ट आती है, विद इन 2-3 आवर्स वहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स लाइक क्रेजी नंबर, 100 से 500. या सो अब HRs वगैरह इतने शॉर्टलिस्टिंग नहीं कर सकते, तो वो करते. ATS टूल has become a very common tool to shortlist people. वो टूल कैसे शॉर्टलिस्ट करता है? Actually I would say it's a very dumb tool if you don't have enough keywords. तो वो एक कॉन्फिडेंस नंबर जनरेट करता है कि ये जो कैंडिडेट है, टूल का क्या कॉन्फिडेंस है कि ये मैच करता है इसके साथ. वो मैच कैसे करता है? वो कीवर्ड्स के साथ मैच करता है. सो यू नीड the way you can have keywords is by putting the content into your CV. Yeah. Right. So मैंने क्या करता था जब, and this applies, ये जब आप प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हैं, मरियम ने कहा आप देखें कि वो उन्होंने क्या काम किया, उसको लिंक करें. तो मैंने ये चीज उस टाइम पे भी की, जब मैं प्रोफेसर को ईमेल्स कर रहा था, उस टाइम पे भी की, जब मैं जॉब अप्लाई कर रहा था, तब शुरू में मैंने किया. एंड लर्न फ्रॉम प्रोसेस. सी देखें कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको रिस्पांस नहीं आ रहा, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, राइट? तो उसको इंप्रूव करने के लिए तो मैंने ये रियलाइज चीज की कि don't have one CV for all the jobs you're Oh yeah, or definitely. don't have one CV or email for all the professors you're sending emails to. तो मैं क्या करता था, मैं जॉब पोस्ट देखता था, उसको सामने रखता था,
अब मैंने ओवरलीफ पे सीवी बनाई हुई थी तो बड़ा इजी था उसको एडिट करना. हम्म, समटाइम्स आई वुड जस्ट कॉपी पेस्ट what they want to what I have done. Like for example, अगर मैं digital twin simulations पे कर रहा हूँ and they have one specific keyword which was missing, I'm pretty sure कि वो align फिर भी करता है मेरे साथ. So sometimes that helps as well कि आप हर टाइम पे अपनी CV को अपडेट कर रहे हो to compare with that and knowing that कि आपकी CV किस रूट से जाएगी which is ATS route, तो आपको पता होना चाहिए कि and there are some tools जिसमें आप अपनी CV डाल के ATS के scores वगैरह चेक कर सकते हो. Right. So sorry Mariam. It's okay. So, the reason I mentioned one page CV is that I agree with Ali. अगर आपका एक experience है जो कि एक पेज में fit नहीं हो सकता, if you have a career of 10 years, because हम 2013 में graduate हुए हैं, so we have a 10 years of experience, academic और industry experience. तो yes, एक पेज पे उससे fit in करना बहुत मुश्किल हो जाता है. But if you have just finished your bachelor's, don't make a Yeah. two-pager CV. If you have one job, two internship, don't make a two-pager CV. जो है अगले को मीट भी मिलनी चाहिए ना कि वो क्या देख रहा है. So that's something. अच्छा, आपके पास scholarships, आपके पास यहाँ पर सारे प्रोफेसर्स के पास फंडिंग्स होती हैं क्योंकि ये रिसर्च चलती ही इस तरह से. I do genuinely believe कि मास्टर्स और PhD graduate school is a think tank for a government and they provide funding to universities for this and उसके लिए आपके professors apply करते हैं and there's a whole process attached to it. अगर आपको कोई कह रहा है कि पैसे दे के PhD करें तो वो स्कैम है. उस PhD की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान में करा रहे हैं चाहे वो बाहर करा रहे हैं. You are supposed to be the think tank of your country and this world and you should not be paying for it. Research should be paid. तो पहली चीज तो ये हो गई. So I do not believe in paying for research. So आपके पास जितनी यूनिवर्सिटीज हैं कनाडा में, अगर वो रिसर्च बेस्ड मास्टर्स और PhD करवा रही हैं, और PhD तो होती ही रिसर्च बेस्ड है, तो वो आपको पे करेंगी. देयर इज फंडिंग अटैच टू इट. ठीक है, उसकी कोई परसेंटेज हो सकती है, कुछ जगहों पे आपके पास कम एक ज्यादा हो सकती परसेंटेज है. कम ज्यादा हो सकती है. आई थिंक UOFT एंड यॉर्क हैव वन ऑफ द बेस्ट पैकेजेस, बट अदर देन दैट भी आपके पास ऑप्शंस हैं एंड दे हैव गारंटेड फंडिंग. सो मेक श्योर टू चेक दैट. अच्छा, इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी आ जाते हैं, आपको एक पार्शियल फंडिंग मिलती है. यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी होते हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. स्कॉलरशिप्स यस दे आर कम्पिटिटिव, बट अगर आपकी GPA अच्छी है, आपका रिसर्च आउटपुट अच्छा है, आप पहले साल के बाद वहाँ अप्लाई करें, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी. मुझे जो फंडिंग थी उसके अलावा भी एंट्रेंस स्कॉलरशिप थी, वो भी मिली थी. एंड दे आर डिफरेंट times I was participating in different research project that would give me a certain amount of funding from them. तो once आप आ जाते हैं तो वो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं. फिर आ जाता है आपके पास एक PR रूट. तो लेट्स सी कि आप एक फेडरल स्किल्ड वर्कर थे, आपके पास एक्सपीरियंस था, आपने कुछ काम किया हुआ था, आपकी एज भी अंडर 30 है, विच गिव्स यू गुड पॉइंट्स. अगर ओवर 30 भी है तो इट स्टिल गिव्स यू इनफ पॉइंट्स. आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, आप टैग की फील्ड में, स्टैम की फील्ड में है, स्टैम की फील्ड में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, आपको PR मिल जाती है. आपका एक कट ऑफ आता है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं आपके पास, स्टैम की कैटेगरीज हैं आपके पास, आई थिंक हेल्थ केयर की कैटेगरीज हैं. आप उसको चेक कर सकते हैं. कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की कैटेगरी, कैनेडियन यहाँ पर काम करने वालों के लिए, फेडरल स्किल्ड वर्कर्स की बाहर से आने वालों के लिए. तो आपने वो कैटेगरीज चेक कर ली, आपने देखा, आपने अप्लाई किया, विद इन मे बी 1 to 2 years your file is picked, आपको जी ड्रॉ गए आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए, और अब आप अपनी चीजें सबमिट करते हैं. अच्छा, अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब आप चीजें अपनी सबमिट कर रहे हैं तो उसमें वो आपसे पूछते हैं कि आप कितने पैसे लेकर आएंगे. ये चीज बड़ी यूज की जाती है और वो आपको ये दिखाते हैं. ट्रैवल एजेंट्स एंड इमिग्रेशन एजेंट कहते हैं कि देखें, कनाडा की इमिग्रेशन इतने पैसों में बिकती है. तो जी वो इतने पैसों में बिकती नहीं है, इट्स जस्ट फॉर यू. आप किसी को वो पे नहीं कर रहे, आपके अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए ताकि जब आप यहाँ आए और आप 4 से 6 महीने जॉब हंट कर रहे हैं तो आपके पास वो पैसे हो अपना खर्चा उठाने के लिए. वो पैसे आपसे कैनेडियन गवर्नमेंट नहीं ले रही, वो पैसे आपसे कोई इमिग्रेशन एजेंट नहीं लेता. तो एक तो ये चीज हो गई. चलें, लेट्स सी आप PR पे यहाँ आ गए, अब आप जॉब हंट करना स्टार्ट करते हैं. यू रियलाइज कि यहाँ पर बहुत से लोगों के साथ ये इशू हुआ है कि जब वो यहाँ आते हैं तो
उनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं होता। एंड एज वी टॉक्ड अबाउट इट कि यहाँ नेटवर्किंग बहुत मैटर करती है इवन इन जॉब सर्च। तो आपको लेट्स से आप सोचते हो कि यार मैं अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय शुड स्टार्ट स्टडिंग, तो उसमें जो चीज़ मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि आपके पास डोमेस्टिक फीसेस बहुत कम है, तो आप डिप्लोमास कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास कर सकते हैं, आप कोर्स बेस्ड मास्टर्स कर सकते हैं। हमारी एक दोस्त हैं जिन्होंने किया है एंड इट डिड गिव हर दैट एज, और उन्होंने फिर आगे कंटिन्यू किया है, शी इज वर्किंग नाउ। तो आपके पास वो ऑप्शंस भी आ जाती हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ मोस्टली जो रिसर्च लैब हैं उनमें 80 to 90% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, एंड दे आर रियली प्रेफरिंग दोज जो कि यहाँ पर अगर पीआर पे आ गए हैं, दे आर लुकिंग फॉर दिस पोजीशन, स्पेशली विद द इमिग्रेशन रूल्स हैव बीन टाइटन्ड। सो बहुत से लोग जो यहाँ ऑलरेडी रहते हैं वो रिसर्च परस्यू नहीं करते। इस also because research हमारे लिए it's a way to get immigration as well, but also हमारे यहाँ थोड़ा सा academically inclined culture है भी। तो आप अगर अप्लाई कर रहे हैं और आपकी स्किल सेट अच्छी है तो आपको हाईली लाइकली स्टडी परमिट मिल जाएगा, क्योंकि दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर समबडी जिसकी जो कि एक लीगल रूट ले रहा है। यहाँ पर नहीं है इतने लोग जो स्किल्ड हैं, यहाँ पर इतने लोग नहीं हैं जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड डिग्रीज ले रहे हैं। तो आपके पास वो ऑप्शन है। और दूसरा ये कि कोई भी कंपनी एक ऐसे बंदे को जिसने मास्टर्स या पीएचडी किया हुआ है वो हायर करने में प्रेफर करेगी अगर वो लीगल रूट से आता है। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है और आप लीगल रूट से नहीं आ रहे हैं तो आपकी जॉब के ऑप्शंस जो हैं वो कोई अच्छी कंपनी नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपसे वर्क परमिट मांगेगी। तो इन चीजों को थोड़ा सा सोचें कि अगर मेरे पास ये स्किल है और एक मैं विजिट वीजा पे आ रहा हूँ तो इट माइट नॉट वर्क फॉर यू, बिकॉज कोई कंपनी आपको जॉब नहीं देगी। आप ऊबर चला रहे होंगे, तो इफ दैट्स व्हाट यू आर लुकिंग फॉर तो ठीक है। तो ये है। इसके अलावा आपके पास फुल ब्राइट के स्कॉलरशिप्स हैं, आपके पास यूनाइटेड नेशंस के कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, वर्ल्ड आपके पास कुछ वर्ल्ड I think WHO has some scholarship, but when nursing and healthcare side पर हैं, you need to dig into it. There's a very good page on Facebook called Scholarship Networks. They post really good positions, all 3 positions except this one that I'm working on. I got from there and I got connected to the professors. So look into it, research, put effort into your application, go reach out for people to help, but don't look for spoon feeding. मैं आपकी एप्लीकेशन नहीं बना सकती क्योंकि मैं आपको जानती ही नहीं हूँ। आप अपने आप को बेहतर जानते हैं तो put in effort there. So Okay. yes. Yeah, that was very thorough. I would also we were discussing जब आपकी एप्लीकेशन लैंड करती है वीज़ा ऑफिसर के पास, तो वहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। लोग समझते हैं कि एक जो कनाडा में वीज़ा ऑफिसर है उसको क्या पता। कनाडा में जो वीज़ा ऑफिसर बैठा हुआ है वो हर रोज टेन्स ऑफ एप्लीकेशंस देखता है, राइट? सो द मोमेंट यू आर पुटिंग अप योर स्पाउस स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन, तो आपने इतनी शादियां अटेंड नहीं की जितनी शादियों की पिक्चर्स वो देख चुका है, राइट? In the like a similar example is one of the professors, well, the people that I work with, उनके पास कोई एकेडमिक पोजीशन के लिए एप्लीकेशन आई थी, एंड वो जनाब ने जाके उन जो एप्लीकेंट था उसकी सोशल प्रोफाइल्स देखी, और अब उस एप्लीकेंट ने सोशल अपनी आई थिंक इट वाज हिज फेसबुक प्रोफाइल, उसने वहां पे अपने वेपन्स के इमेजेस शेयर किए हुए थे। तो द प्रोफेसर केम टू मी एंड ही सेड कि मैं इस तरह इस स्टूडेंट को देख रहा हूँ, इसकी एप्लीकेशन ठीक लग रही है बट इसकी सोशल प्रोफाइल पे जो है वो AK-47 है। तो सो वो मेरे से पूछना चाह रहा था कि क्या सिचुएशन है, तो मुझे नहीं पता था कि कौन एप्लीकेंट है या क्या सीन है, तो आई ट्राई टू डाउन प्ले। हमने कहा हाँ समटाइम्स होता है कि
हमारे लाइक शादी के इवेंट वगैरह पे इट्स अ वे ऑफ सेलिब्रेशन, कुछ लोग करते हैं. बट देन ही शेयर्ड हिज स्क्रीन और उसके सोशल प्रोफाइल पे सिर्फ AK-47 थी. या सो ये छोटी छोटी चीजें भी बाद में मैटर करती हैं, क्योंकि द when professors on their own या departments जो है आपको screen करते हैं, they go all the way to the bottom of. Yeah, and background check is like अगर आप यहाँ पे jobs भी कर रहे हैं in most companies, background check is a thing. Like doesn't matter कि Yeah. आपने पाकिस्तान में क्या किया था, आपको अगर लगता है कि आप you're gonna leave it behind, the chances आ सकते हैं कि आपको पीछे की हुई गलतियां आपके सामने आ जाए. Yeah, absolutely. Right. So Actually, यहाँ पर sorry to interrupt you, Mhm. Tausif. I want to also mention कि recently we found out about something कि आपके पास ना वीजा एप्लीकेशन में एक पोर्शन है जहाँ पर आपने मेंशन करना होता है कि आपके वीजास कहाँ कहाँ से रिजेक्ट हुए थे. अगर आप उसको ट्रूथफुली फिल नहीं करते, so there's this girl, she has been mentioning, she applied for it और वो मेंशन करती आ रही है, बट एक जगह पे she forgot for her extension, study permit extension. और उनका उस टाइम वीजा अप्रूव हो जाता है और विद इन 6 मंथ शी गेट ईमेल सेइंग कि हम आपको डिपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज आपने ये चीज मेंशन नहीं की थी. एंड देन Misrepresentation. सो शी हायर्ड अ लॉयर एंड शी टोल्ड देम कि जी देखें पुरानी एप्लीकेशंस में मेंशन्ड है, तो मैं कहीं हाइड करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ. तो प्लीज डू नॉट लाई इन योर एप्लीकेशंस. ये तो चलें एक मिस्टेक थी, बट प्लीज डू नॉट लाई इन योर एप्लीकेशंस. Yeah, of course, that's like a no-no. Okay, so now going back to let's keep it moving. So after immigration comes the reality of it. Once you are here, um, I would like both of you to share what life here has been and in what ways has Canada delivered to your expectations or under delivered, or how the life has been here. So I'll probably, Mariam, you can go first. Sure. So now I'm gonna talk about academically. I think मेरे लिए सबसे interesting चीज ये थी, I was not a huge fan of research, though I was doing a PhD program, and as I said कि मैं ऐसा project ढूंढ रही थी जो कि commercially भी matter करे, उसकी practical application भी हो. But हम जिसका environment से आते हैं वो बहुत ज़्यादा competitive है. तो हम बड़े इंजीनियरिंग फोकस्ड एंड टास्क ओरिएंटेड लोग हैं और हमारी यूनिवर्सिटीज भी हमें उसी तरह से ट्रेन करती हैं, विच मेक सेंस. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट. इसलिए हम इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छे तरीके से चल भी जाते हैं. जो मेरे लिए चीज थी वो ये थी कि फॉर अ ईयर आई हैव टू टर्न ऑफ माय इंजीनियरिंग ब्रेन एंड टर्न ऑन माय साइंटिस्ट ब्रेन. सो अगर कोई चीज चल रही है तो क्यों चल रही है, और अगर कोई चीज नहीं चल रही तो क्यों नहीं चल रही. These questions for a year, I would have to continuously go in and out of it. And then learn to read research papers, learn to and basically find, because एक कुछ चीजें हैं जो कि एक मिसकंसेप्शन होती है कि किसी ने अगर रिसर्च पेपर लिख दिया तो वो बाइबल है, उसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती. to learn to find problems and limitation in research is not arrogance, it's finding knowledge gap जिसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं. तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी. बहुत ज्यादा फोकस है रिसर्च के ऊपर. आपका प्रोफेसर इज नॉट लुकिंग फॉर सम जस्ट अ प्रोजेक्ट टू रन, ही इज लुकिंग फॉर अ कंट्रीब्यूशन. और कुछ चीज नहीं भी चली तो वो भी एक कंट्रीब्यूशन है कि ये एक सेटिंग है जिसके ऊपर ये चीजें नहीं चलेंगी. So that was an interesting change that I liked. I think मैंने 18 साल पाकिस्तान में पढ़ाई की, बट जितना मैंने इन पिछले 6 सालों में लर्न किया है वो शायद मैंने उन 18 सालों में नहीं किया. I love science now. मैं जिस चीज को देखती हूँ I want to know the science behind it. So that was amazing part for me. So definitely something good that I found. Bad, I think it's attached to academia. They have a culture of publish or perish. तो जो है even कुछ भी है बस पब्लिश करना है. There's a huge competitive cycle going on, especially अगर AI और vision field में है.
6 कॉन्फ्रेंसेस कंटिन्यूअसली हो रही होती हैं, यू हैव टू कीप सेंडिंग समथिंग टू देम टू गेट इट पब्लिश दैट ईयर। तो वो दैट वाज एंड समथिंग इट्स दैट आई एब्सोल्युटली डिड। क्वांटिटेटिव, लाइक उसमें सिर्फ नंबर मैटर करता है, क्वालिटी का यस, कुछ उसमें नहीं है। नहीं, इवन इनोवेशन भी मैटर नहीं करती एज सच। इट्स हम्म, वेरी बैड राइट नाउ, व्हिच आई फील लाइक कि फ्रॉम वन CVPR to another CVPR, which is one of the biggest conference in vision and pattern recognition, uh, कोई पैराडाइम शिफ्ट रिसर्च नहीं हो रही। तो दैट्स समथिंग दैट आई डोंट exactly feel good about. Immigration on personal level, I think जो चीज the good thing is कि so again the importance of networking. बहुत सारे लोग यहाँ जब अकेले आते हैं और उनके नेटवर्क्स नहीं होते, उनके दोस्त नहीं होते, वो लोगों से लिंक अप नहीं करते, पहले 6 महीने बड़े बुरे होते हैं। आपको होम सिकनेस हो रही होती है, आपको अगर कोई चीज नहीं मिलती घर जैसी तो आपको रोना भी आता है। हम बड़े लकी थे इस मामले में। वी हैड उस्मान एंड उस्मान गेव अस दिस रेडीमेड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, और हम पहले वीकेंड ही पार्टी करने में आगरा गए हुए थे। तो जो है that really helped, to be honest. I take huge pride in a fact that we have a family here that I miss when I go home. That does not happen to everybody. 6 years now, I have different group of friends that I love and cherish. तो वो एक चीज है, अगर आपको एक बार कम्युनिटी मिल जाती है तो in a city like Toronto, if you find a community, you're very lucky. And if you are coming to a school, there's a highly likely chance of you finding a community. But if अगर आप PR पे आ रहे हैं तो please connect with people that you know already here. कोई आपसे jealous नहीं हो रहा, कोई आपके पैसे लेके नहीं भाग जाएगा, कोई नहीं सोच रहा, like leave those misconceptions back home, try to come with the warmer energy. तो Start एक तो ये trusting चीज people. है। Yes. Start trusting strangers as well. You don't know how much we rely on the kindness of them. थोड़ी सी is there racism though? I don't know. I like there is, of course, I think, but well, I come from Balochistan. I was a minority in a minority, so I'm very well trained in that. So इतना शायद also जिन सर्कल्स में हम मूव कर रहे थे वो शायद हमें इतना ज्यादा फील भी नहीं होता। उसकी रीजन ये काफी पढ़े लिखे सर्कल्स हैं। ठीक है, देयर इज अनकॉन्शियस बाइसेस जो कि आपको फील होंगी, अगर आपको फील होती हैं तो। अगर नहीं होती तो आपको पता भी नहीं चलेगा। दे आर पीपल हु वुड से कि कोई है ही नहीं, रेसिज्म यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो एक चीज है, the good and the bad आपकी। I think that's one thing that I would really want to point it out here is I graduated from NAST, just one of the best schools back in Pakistan. Took me 8 months to find a job back home after I graduated. It was a good time क्योंकि मैं कोयटा में थी। आपके पास प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं कोयटा में। I have to move Islamabad to work. Recently, I was doing a job hunt. Within 4 months, I had 2 job offers. That in a tight honestly job just environment. in a very tight job environment. अगर आपके पास skills हैं तो opportunities बहुत हैं, आपको मिल जाएंगी। I remember showing my CV to Tausif and he just like he sent me some tips and then he sent me a message saying, I know it's a bad market, but you have good skill set. You're gonna find something. And I think that was good to know. Like that was a good feeling to know. Not just because he's my friend and he was sending me that message, but also because he works in the industry. He hires and fires people. So that was a good thing to have. So I think just having that sense of opportunity कि आप खोलते हो LinkedIn और job postings वहां हैं, आपको मिल रही है नहीं मिल रही वो एक अलग बात है। It's a good Just feeling. that sense, yeah, it's a good feeling कि यार कोई कहीं ढूंढ रहा है किसी को। That didn't happen to me. I remember being depressed. मेरी पूरी class hired हो चुकी थी. I was in top 3 of my class and I wasn't hired. It was depressing situation for me. मुझे लग रहा था कि मैं बहुत पीछे रह गई हूँ जिंदगी में। तो
I know कि कुछ चीज़ें आपको उस टाइम ये एहसास नहीं होता, and I know it's hard to leave your parents behind, your family behind, but there are ways to have those opportunities. So kindly look into it. Right. Awesome. So Ali, you wanna reflect on your experience Yeah, since sure. you've been here? Okay, so I genuinely believe that I was getting trained for Canada all my life. So उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, like the issues I had, the kind of job I had. So just to give a background, and I think you and me both, we worked in a game development company in Mm-hmm. Pakistan. फिर मैंने UAE में भी same job की. Gaming, nothing against anyone who is in this market right now. I think it wasn't very, like, financially it was very rewarding for me, but जैसे तो सीखने का एक टाइम आता है, आप सीलिंग हिट करते हो, then you need to move. So other than that, there is a crunch culture, so many issues. So मुझे इन चीज़ों से काफ़ी प्रॉब्लम थी. I always wanted or desire to have a good balance between आपके जो जॉब है और आपका जो I feel like and I believe that I'm a very family oriented person. So मुझे लगता था कि वो मैं कभी भी शायद ना कर पाऊँ. यूएई में मैं जिस कंपनी में था, I was one of the first to join them. Then the company grew, so obviously like I was on top, and then there was so much responsibilities. तो वीकेंड्स पे काम करना, ओवरनाइट्स काम करना, पाकिस्तान में छुट्टियां हैं तब काम करना. सो दैट लाइन बिटवीन पर्सनल लाइफ एंड योर वर्क लाइफ वाज फेडिंग अवे. यहाँ पे जब मैं आया, मैं स्टार्ट करूंगा पहले एकेडेमिया से, एंड आई थिंक मरियम डिड अ वेरी गुड जॉब एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग. I think I have a little bit less different experience, maybe because I didn't spend like as much long time as Mariam did, because she did PhD, I did masters only. I didn't want to publish as much as I did. So I think for me, maybe I was very lucky. I had all the opportunities coming here from left and right. For example, I did a course with one professor. So यहाँ पे मास्टर्स में जब आप रिसर्च बेस कर रहे हैं, लाइक आई थिंक यू ओनली हैव 3 मैंडेटरी कोर्सेज टू टेक. उसमें से 2 मैंने अपनी लैब्स में लिए थे, एक कोर्स मैंने बाहर लिया था. अब जो एक कोर्स भी लिया, एंड दिस इज ओनली टू एक्सप्लेन के अपॉर्चुनिटीज कितनी है. Yeah. If I wanted, I had a very good opportunity for PhD outside of my lab, like within the same York University CS department. But then like I did a course there, and ये इस चीज को भी एक वैलिडेशन है कि यहाँ पे प्रोफेसर्स हंट पे होते हैं. दे नीड पीपल टू डू रिसर्च विद देम. सो मुझे यहाँ पे 2 साल एकेडेमिया में, एंड आई थिंक पाकिस्तान में मेरा एकेडेमिया में बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बिकॉज मे बी आई वाजंट, मुझे लगता था कि बस लाइक फॉर एग्जांपल वी तसीफ मेंबर्स, हमारे बहुत ज़्यादा कोर्सेज ऐसे थे जो टेक्निकल नहीं थे, एंड उनके अंदर आई डिड बेयर मिनिमम बिकॉज मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था. टेक्निकल कोर्सेज आई वाज वेरी गुड एट दोज, बिकॉज मुझे पता था कि मैंने कल को इंटरेस्ट है, इंडस्ट्री में काम करना है. यहाँ पे आप उस चीज को काफी हद तक मतलब फोकस कर सकते हो. यू डोंट नीड टू गो थ्रू ऑल दैट jargon. तो फिर एक आई थिंक ह्यूमन नेचर है कि आपको जब किसी चीज कोई रिवार्डिंग फील हो रही है, उसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है, जैसे मैंने कहा पाकिस्तान में हम अपनी उस रिसर्च में जो भी हम काम कर रहे हैं, हमें उसका कोई गोल नजर नहीं आ रहा, कोई आउटपुट नजर नहीं आ रही, बस ग्रेड्स ही एक आउटपुट है. तो यहाँ पे अब मैंने प्रोफेसर जब एक एक्स्ट्रा मतलब 4 months का कोर्स था, उसके अंदर से मैंने कोर्स किया, एक पेपर पब्लिश हुआ, यूएस में इनवाइट आई, तो बंदे को फील होता है कि यार मे बी व्हाटएवर आई एम डूइंग इज रिवार्डिंग, मतलब इसका कोई इम्पैक्ट है. तो ये चीज मुझे एकेडेमिया में यहाँ पे बहुत अच्छी लगी. मेरे कुछ कंसर्न से, कुछ फियर्स थे कि मैं 7.5 साल बाद, 8 साल बाद एकेडेमिया में आ रहा हूँ, तो मुझे क्या डिफिकल्ट होगा. एंड एज मरियम वेरी एक्यूरेटली हाईलाइटेड कि हमारा वो, एंड आई थिंक आई वाज अ गुड इंजीनियर बट आई वाजंट अ वेरी गुड एकेडेमिया राइटर. तो मुझे वो माइंडसेट चेंज करना, बट आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी. मुझे पता चला कि so I learned how to write without fear, and now when I'm in industry I learned how to edit without mercy. So you do need these 2 things. So wo different flavors mile, and I think it's only because of the environment they have created in industry and the environment they have created in industry here. So ये बहुत चीजें
So yeah, I have maybe very lucky. I had a very easy, very good, very rewarding time at university. अब थोड़ी सी बात इंडस्ट्री की भी कर ली जाए. I think the biggest flex Canada can have, or at least for people who are coming from India, Pakistan, or South Asian countries, is how amazing work culture is here. Oh, And yeah. I The can work-life go, balance is great. yeah, I can go on. Like, I think I have a very challenging job in a way कि उसकी like implications थोड़ी safety, मतलब okay, just imagine I was working on games जहाँ पे bugs आना is a very common thing. Like you all have played like AAA games and they have bugs, right? Yeah. So that kind of non-serious, or you can say non-critical work, right? So I had that लाइफ mindset. थ्रेटनिंग नहीं है. लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है ना. जब और दूसरा लाइक फाइनेंशियली थ्रेटनिंग नहीं है. मतलब देयर आर वेरी क्या बग आ रही है, पैच आ गया, अपडेट कर दी, एंड इट्स वेरी कॉमन देयर टू शिप अनकुक्ड गेम्स, राइट? Yeah. So and now here when I'm so the only reason I'm mentioning this is because कि जब मैं न्यूक्लियर की फील्ड में हूँ, मुझे तो पागल हो जाना चाहिए था कि लाइक सो डिफिकल्ट, बट एक्चुअली आई एम वेरी रिलैक्स्ड. द रीजन बीइंग इज यहाँ पे यूनियंस हैं, यहाँ पे वर्क जो इवन कॉर्पोरेट्स हैं, दे नो द वैल्यू ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस. Nobody can text you after working hours. Nobody can push you for something you are not comfortable to do. Nobody is gonna push you for something outside of your skill set. And even if there will be a consensus. लोग वो आपके managers, आपके technical managers वो आपको साथ बिठाएंगे, ट्रेनिंग देंगे. और एक और चीज है कि पाकिस्तान में मुझे लगता था, यूएई में मुझे लगता था कि आई हैव एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ माय फेस, लाइक आई डोंट नो कि आज से साल बाद मैं क्या कर रहा हूँ. यहाँ पे इंडस्ट्री में मुझे ये फील हुआ है कि आपके पास एक लॉन्ग टर्म कैरियर अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है. एंड एज मरियम सेड कि आप जो भी काम कर रहे हो, आप लिंक्डइन पे जाते हो, आप उसके रेलिवेंट जॉब पोस्ट देखते हो, आप एक डिमांड देखते हो, डिमांड है तो आपकी फुलफिलमेंट है. सो ये तो सारी हो गई अच्छी चीजें. कनाडा आने के बाद कुछ चीजें हैं जिसके लिए शायद आप पाकिस्तान में कभी रेडी नहीं हो सकते. वो चीज एक ये है कि स्पेशली फॉर पीपल हु वांट्स टू बिल्ड देयर लाइफ, बिल्ड देयर फैमिली हियर, कि आपको यहाँ पे सब कुछ खुद करना पड़ेगा. आपको यहाँ पे स्पून फीडिंग बहुत कम होगी. यहाँ के कुछ कल्चरल इम्प्लीकेशंस हैं जिसके साथ आपको मतलब एडजस्ट होना होगा. इफ लाइक पर्सनली मैंने मे बी आई एम लिविंग इन अ बबल कि मैंने इन सालों में पर्सनली रेसिज्म नहीं फेस की, बट देयर कैन बी सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक और कैजुअल रेसिज्म व्हिच पीपल हैव मेंशन्ड, पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड. Although I still feel that from most of Western countries, Canada maybe be like I go to masjids here, I go for Friday prayer like very regularly, and बहुत एक मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुझे मज़ा आता है कि वो वहाँ पे हमारे जो इवन मतलब तो सो आई हैड दिस प्रॉब्लम पाकिस्तान के मस्जिद में जुमा पढ़ने गए, आप इस नीयत के साथ गए हो कि मैं अपने अल्लाह के साथ कनेक्ट करूँगा, कुछ अच्छा सुनूंगा, उसको मैं 1 घंटा अपनी लाइफ से वहाँ पे स्पेंड कर रहा हूँ, तो कुछ अच्छा सुन के गा रहा हूँ उसको मैं. मोस्टली वहाँ पे जो इश्यूज डिस्कस हो रहे होते हैं, लाइक आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल, कैसे ये सारी चीजें. अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, मुझे पता होता है कि उनको पता है कि जो ऑडियंस है शायद दे हैव दिस सो बड़ा एक वेल रिटन, वेल थॉट आउट सरमन मिलता सुनने को. एक कम्युनिटी की फीलिंग आती है जो कि मुझे यूएई में काफी हद तक मिली थी, पर पाकिस्तान में तो मस्जिद को हम ऐसा मस्जिद मतलब जो हमारी टिपिकल उस तरह से है कि यहाँ पे मस्जिद के अंदर और बड़ा कुछ हो रहा है. ये चीजें मैंने बिल्कुल रियलाइज नहीं थी कि पाकिस्तान में मुझे मिलेंगी. कनाडा आके मैं ये चीजें एक्सपीरियंस करूंगा. बट जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको ये देखना चाहिए कि अभी हम रिसेंटली हमने कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स देखे कि बहुत से स्किल्ड लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हाउसिंग बहुत एक्सपेंसिव हो गई है. जॉब मार्केट पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे थे हम पहले, तो ऑब्वियसली इट मेक सेंस हम जब इसकी तारीफें करें, बट जो हिस्टोरिकली कनाडा से कंपेयर किया जाए तो वी हैव जॉब लॉस, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट के रेट बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन है, जो हाउसिंग मार्केट है उसका स्ट्रेंथ बहुत बड़ा है. ओवरऑल जो कनाडा का लैंडस्केप है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल
just giving my example, one of the day I have to travel for like 82 kilometers one side. तो Mhm. Sif has to make a long trip as well. Yeah. So इन चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा रेडी होना चाहिए. पाकिस्तान में and I have this problem with my family back home as well. लेट उठना, लेट सोना, यहाँ पे आपको like sometimes like and I'm sure to Sif does as the same. आप 5 बजे उठते हो, आप अपने काम पे जाते हो, वापस आके फिर so I think life is very rewarding, but life is very challenging as well. यहाँ पे demands a lot. You need to be on top of your game. Yeah. Right. So, yeah, absolutely right. Routine आप एडजस्ट कर लेते हो, बट जो यहाँ की इकोनॉमिक रियलिटीज हैं जिसमें अच्छी चीज़ें भी हैं बुरी चीज़ें भी हैं इज पार्ट एंड पार्सल. वी आर सीइंग इन्फ्लेशन, वी आर सीइंग जॉब लॉस. टेम्पररी है, कितना लंबा रहेगा वी डोंट नो, बट राइट नाउ इट्स देयर. So, yeah, important thing to highlight. I'll probably ask Ali to share his experience of job hunt, because he, like, after your degree, you spent some time through a number of offers that you had. So if you could very quickly share, and then we'll probably wrap it. Yeah, sure. So जब मैंने डिग्री कंप्लीट की तो I was a little bit disheartened कि तब जॉब मार्केट थोड़ी कोविड के बाद से वो जो टेक बूम आया था सारा वो जाना शुरू हो गया, बल्कि फायरिंग स्प्री स्टार्ट हो गई. आई रिमेंबर कि मैं भी अपना थीसिस ही कर रहा था तो जब ये न्यूज़ आनी शुरू हो गई कि लाइक सो यूनिटी एंड कंपनीज लाइक सच वर लाइक दे वर माय प्राइमरी टारगेट, बट उल्टा उन्होंने फायरिंग स्प्री स्टार्ट कर दी फेसबुक से, इस तरह की बड़ी कंपनी से. तो बट आई थिंक ये चीज़ें तो किसी के साथ भी हो सकती हैं. मार्केट कभी भी किसी पाकिस्तान में, बाहर यूएई में, हर आप यहाँ पे आपको मतलब अप्स एंड डाउन्स आते हैं. सो आई थिंक यू नीड टू बी रेडी. तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी उस फोकस को थोड़ा सा चेंज कर लिया कि मैं पहले अपनी प्रीवियस जो मेरा बैकग्राउंड था, टेक्निकल बैकग्राउंड, और जो मेरी रिसर्च थी, जो मेरा मास्टर्स था, मैं उनको कोई मिक्सचर लेना चाह रहा था. तो वो मेरे पास बनती थी कि ये जो यूनिटी, अनरियल, इनके अंदर जो सिमुलेशन या डिजिटल टूल्स वगैरह का काम हो रहा है. तो बट देन आई रियलाइज कि लाइक दिस लाइक प्योर टेक्निकल कंपनीज और आईटी कंपनीज, दे आर हैविंग, उनको थोड़ी डिफिकल्टीज आ रही हैं. तो मैंने थोड़ा एक्सटेंड करना शुरू किया टू नॉन कन्वेंशनल आईटी कंपनीज. तो आई थिंक दैट हेल्प मी लॉट बिकॉज फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर में दे आर नॉट, these companies don't consider them as like a software house. They don't essentially build softwares. So but they still need people who understand software. तो यहाँ पे जब मैंने वो किया तो I think that opened so many new paradigms for me. अब किस तरह से मैंने किया, जो I think हमने पहले थोड़ा सा डिस्कस किया है कि जब भी मैं किसी जॉब पे अप्लाई करता था तो मुझे ये रियलाइजेशन आ गई कि लाइक एक सीवी हर जगह पे नहीं चलेगी. LinkedIn has a lot of job posting, but शुरू में आपको फील होगा, and I think you need to, but it will take you time to master this कि आप शुरू में अप्लाई कर रहे हैं, आपको शायद एक रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा. मेरी एडवाइस ये है और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बी वेरी कंसिस्टेंट. You just need one company to invite you for interview, and believe me, I knew in my mind कि जब मुझे एक इंटरव्यू की कॉल आ गई, so I can convince them to hire me. So it took me some time, like okay, I shouldn't say it took me some time because that felt very long, but actually I think वो 1 या 2 महीने का time था. Yeah. I started receiving offer from few gaming companies, which are very big companies. They had so यहाँ पे process mostly hiring का बड़ा long है, क्योंकि उसकी reason जो मैंने explain किया, बंदा आप एक दफा hire कर लेते हो, if those companies have union, it's gonna become very hard for them to let you go. So they wanna make sure that कि वो आपको they're hiring the right person. Right. In the start, जब मुझे अच्छी offers आनी शुरू हो गई तो I became greedy. So I started asking a lot, and I think I screw up one of the opportunity there. Anyhow, lesson learned. Maybe it's for the good.
उसके बाद जब जिस कंपनी में मैं अभी हूँ मुझे वहाँ पे जॉब ऑफर नज़र आई which like I didn't have to change my CV a lot for that. Mhm. It worked out well. I know many other, for example जिस टाइम पे हम हो रहे थे हमारे कुछ और दोस्त हैं वो उनका भी हो रहा था, they had the same experience. शुरू में उनको ATS ने काफ़ी तंग किया, they had to learn how to like convince the ATS to Mhm. have their CV shortlisted. Mhm. Overall, I think जितनी भी job market tight हो गई है ना, if you stay consistent, if you don't lose your focus, if you don't start, I have seen few people who lose their focus and for example, Uber is a very easy Option. ऑप्शन है. सो लोग क्या करते हैं कि जब 1-2 महीना ट्राई किया जॉब नहीं मिल रही, एंड आई थिंक इट्स फाइन टू डू इट पार्ट टाइम, but then once you start doing part time you want to make more, you end up doing just that and just Yeah. completely ignore, like if you stop applying, like just understand, if you're not updating or if you're not applying to new jobs, nobody is gonna like look into you. अगर आपको रिजेक्शन आ रही है, वो कह रहे हैं कि हो गया, like we went with somebody else, we will keep you in the loop, you know, it's high chances that it's not going to happen. Mhm. कुछ जगह पे मैंने 1.5 साल पहले अप्लाई किया था, मुझे आज भी रिजेक्शन वहां से आ रही है. तो जस्ट Yeah. ये सारी चीजें होंगी आपके साथ. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद योर प्रोफाइल. देयर इज वन कंपनी हु इज डेफिनेटली गोना हायर यू. सो ये चीज रखें स्टेप. मीनवाइल उस प्रोसेस में बहुत सी स्टेप पुशबैक्स आएंगी, जस्ट डोंट माइंड देम. Right. नथिंग पर्सनल. Okay. So I yeah, just just. wanna Mhm. just want to add something here is I understand that Uber does seem lucrative उस time पे and not everybody is gonna get this chance, but Yeah. if you do one thing, uh, so what I did is between when I was changing the jobs and the 4 months that I had, 3 weeks into it, I literally called everybody and I told them that I'm looking for a job. So I had no shame. I was telling everybody, Just reach any out. single human, Yeah. yeah, who was listening, I was telling them I want work. Mhm. And an old colleague of mine reached out and they said they have some contract work. So I end up working for them for a bit, Mhm. and I still do here and there work for them. Try to reach out to your network and work in your own field, तो ताकि वो आपकी CV पे add हो जाए, and that also keep you in the momentum of looking for something. It keeps you hungry because आप कुछ नया देख रहे हैं, कर रहे हैं. It makes things possible. I know it's not possible for everybody, but try it. Try to reach Right. out because कभी कभार companies के पास सिर्फ 1-1.5 महीने का काम होता है, and that would be very suitable for you. So Right. yeah, just Yeah. So iterate on your resume. Do not iterate if you're getting interview calls. Try to get to the interview chair. And at the end of the day, it will boil down to your skill. If you are skilled, you're able to reach an interview, you'll probably be fine. Okay, we are well over an hour. I think that's a wrap. So I'll thank